آپ کی شوق ہے قوم کی خدمت کا. یقین مانیے یہ کھولا اس وجہ سے گیا ہے کہ ہمارا آپ جائیے کورٹ میں مسلمان لوگ 90% جتنے ہیں فیملی کورٹس میں پولیس اسٹیشن. تو ہمارا کام ہفتے میں 2 دن کر رہے ہیں ہم. ہماری بھی سپورٹ لگیں گے. چھوٹی سی مطالبہ یہ ہے کہ سب سے بڑی کمی جو آ رہی ہے محکمے کو فنڈ کے علاوہ سٹنگ اسٹاف کی یہ ان لوگوں کو بلانے میں جو صاحب کے ساتھ سر وہ بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. تھوڑا آپ کی توجہ سیکریٹری صاحب سے بات کریں. بس آپ کے پاس سے کیا حالات ہے اس کی رپورٹ کیا ہے آپ بھی ان کا رپورٹ لکھ دیجیے کہ فنڈس اویلیبل ہیں. اچھا ریسپانس دیا سلیم صاحب منسٹر صاحب بہت اچھا ریسپانس دیا. نہیں سر بھی سپورٹ کریں گے. ہم کچھ طاقتور بنانا ہے سر کیونکہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ آرام سے جائیے ہم دیکھیں. تھینک یو سو مچ. ایک لیٹر یہ دیتا ہوں ان کی جگہ ان کو اپوائنٹ کریں. سر آئی ول ٹیل یو میں آپ کو پورا رپورٹ بتاتی ہوں کیسا کرنا ہے. آپ کسے فالو کروں سر میں آپ کو تھوڑا آپ لوگ کا سر 3 پوائنٹس میں سوری اپن جو ریپرزینٹ کرے وہی بولنا ہے. فرسٹ کی یہ آرگنائزیشن 6 سال سے کام کر رہی ہے انڈر دا چیئرمین آف آپ اور ممبران, اور جو ممبران اس کے بعد نہیں کنٹینیو ہوئے ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اور اس کام کو افیکٹو بنانے کے لیے چیئرمین صاحب نے ان کو ریپلیس کیا. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ تنظیم وداؤٹ اینی ریگولیشن. ہاں تو دس واز ریپرزینٹیڈ ٹو first is important thing is first class judicial magistrate powers to be assigned to this, which the ministry is thinking. It said کہ ہم سوچیں گے اس کے بارے میں اگری کر رہے ہیں دینا ٹھیک ہے سر. اینڈ تھرڈ امپورٹنٹ واز he wanted shortage of funds and he wanted us to represent to the ministry saying shortage of funds है and thus we are not doing so. دیکھیے آج یہ میرج کاؤنسلنگ سینٹر کا افتتاح تقریباً 6 سال پہلے ہوا تھا, جس وقت عمر جلیل صاحب مائنورٹی کے سیکریٹری تھے. اس میں خاص دلچسپی لینے والوں میں محمود صاحب تھے, جو محمود علی صاحب تھے جو ڈپٹی سی ایم تھے. اور میں سنا کہ خود KCR صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایسا کھولا جائے تاکہ یہ لوگوں کو پولیس اسٹیشن اور کورٹوں کو پھرنے سے نجات ملے. تو یہ اللہ کے فضل سے یہ 6 سال سے کام کر رہا ہے. اور یہاں جو 1+6 ممبرس تھے چیئرمین وہی لوگ کام کر رہے ہیں. اب ہم کو جو سخت ترین ضرورت ہے وہ جوڈیشل فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی پاورس ہے, اسٹاف کی ضرورت ہے, اور جو آنریریم ہے اس کی ضرورت ہے. آج ہم سب نے جا کر سلیم صاحب چیئرمین آپ کے وقف بورڈ سے ریپرزینٹ کیا, اور ان کا وہ بڑی محبت اور خلوص سے پیش آئے, اور انہوں نے کہا کہ وہ ضرور حتی الامکان کوشش کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پھر ایک اور تھوڑا ریپرزنٹیشن گورنمنٹ کو پھر سے دے دیں. تو منسٹر صاحب کو پھر سے اور ریپرزنٹیشن دے دیں. ان کی طرف سے پوری کوشش رہے گی اور ان کا کوآپریشن ہمارے ساتھ چلے گا. السلام. ممبران چینج ہوئے یہ ممبران جی آپ بول دیں, آپ بول دو. آپ جس کا بتانے ایک منٹ انتخاب جو موجودہ ممبرس سے انہی کی جگہ پہ ایک سیکنڈ جی سر. ممبران تھے وہ پہلے سب سے پہلے چیئرمین صاحب جسٹس اسماعیل صاحب, پھر اس کے بعد شفیق الرحمان مہاجر ایڈوکیٹ کوٹا میں, پھر محسنہ پروین ایڈوکیٹ کوٹا میں, مفتی صادق محی الدین صاحب قبلہ مفتی کوٹا میں, پھر محمد رفیع الدین شریعہ کونسل حیدرآباد اپنے شریعہ کونسل کے کوٹے میں تھے, اور قاضی اکرام اللہ صاحب تھے, اور سبیہ صدیقی محترمہ تھے جو اب انتقال فرما گئے. چیئرمین صاحب اپنی جگہ پہ ہے, اس کے ساتھ شفیق الرحمان مہاجر کی جگہ پہ ولی الرحمان و وجی الدین صاحب ان کی جگہ پہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. محسنہ پروین ایڈوکیٹ میڈم کی جگہ پہ جنابہ افسر جہاں میڈم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مفتی صادق محی الدین صاحب قبلہ کی جگہ پہ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ فائز ہیں. محمد رفیع الدین شریعہ کونسل حیدرآباد کو نمائندگی میں کر رہا ہوں. محمد شجاع الدین شاہد فریدی سجادہ نشین خانقاہ فریدیہ. محمد اکرام اللہ صاحب کی جگہ پہ محمد انیس الدین صاحب کر رہے ہیں, اور سبیہ صدیقی محترمہ کی جگہ پہ افراز سلیم PhD عثمانیہ یونیورسٹی نیا اپوائنٹمنٹ ہوا ہے.
हम एक सेकंड हम ये तवक्को रखते हैं कि इस बात को ज़्यादा तशहीर दी जाए ताकि एक जो नेक काम हो रहा है, जहाँ सैकड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं और लोग भी जो बार बार जो पुलिस स्टेशनों को जाते हैं और फैमिली कोर्ट्स को जाते हैं, अगर ये आप इश्तिहार देंगे और कहेंगे कि फोर्थ फ्लोर पर हर चाशुम्बा और हर हफ्ता सुबह 10:30 बजे से यहाँ काउंसिल बैठती है, तो लोगों का काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब हमको जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वगैरह के पावर्स मिल जाएंगे तो फिर काम और काफ़ी आगे बढ़ेगा और इस पे मिल्लत का फ़ायदा होगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैरिज काउंसलिंग ऑफिस का आगाज़ उस वक्त हुआ जबकि हमारे रियासत तेलंगाना अलहदा हुई और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर का ओहदा मुझे पर फायज हुए। जैसे ही वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बन गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर ये फिक्र जस्तजू थी कि सारी रियाया को खुश रखा जाए और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरी किया जाए। चुनांचे इसी तनाजुर में वो मुस्लिम माशरे में जो बिखराव पैदा हुआ है निकाह व शादी व तलाक़ व खुला से मुताल्लिक़, उसको महसूस करते हुए उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहब और उनके जो नायब वज़ीर आज़म थे मीर महमूद अली साहब और उस मोहतरम जमील साहब उमर जलील साहब, इन सब की मुशावरत के बाद ये तंजीम का वजूद अमल में आया और उस मौके पर हुकूमत की तरफ से 6 अफराद का इंतखाब किया गया। उस मुंतखबा अफराद में से मोहतरम जनाब इस्माइल साहब चेयरमैन और 6 अफराद का तकर्रुर अमल में आया। चुनांचे मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब इस्माइल साहब साबिक़ रिटायर्ड जज, अल्हम्दुलिल्लाह वो कारगुजार हैं, उस वक्त से और आज तक भी उनकी कारगुजारी जारी और सारी है। इस असना में कुछ अरकान वो हैं जो शुरू ही से यहाँ नहीं आए, जैसे मुहाजिर शफीक साहब हैं और असहाब हैं, रफ़ीउद्दीन साहब हैं। कभी उन्होंने एक मजलिस में भी यहाँ शिरकत नहीं की, हाज़िरी नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि मोहतरम हमारे चेयरमैन साहब और आखिरुल इबाद मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन और क़ाज़ी इकरामुल्लाह साहब और आगे चलकर मोहसिना परवीन साहिबा और सबिया सिद्दीक़ा साहबा, ये सब इस काम को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन हुकूमत की तरफ से जैसे वादा किया गया था ताउन का, कोई ताउन नहीं किया गया। इस असना में सबिया सिद्दीक़ा मोहतरमा का इंतकाल हो गया, तो ज़ाहिर है उनकी जगह खाली हो गई। रफ़ीउद्दीन साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, उनकी जगह खाली थी। और हमारे उमर शफीक मुहाजिर साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ नहीं ला रहे थे, उनकी जगह भी खाली थी। 2 साल से अब ज़ाहिर है 2 साल से हमारे मोहतरम क़ाज़ी इकरामुल्लाह साहब भी तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं। ये सारी जो कमी पैदा हो गई इसके अंदर, इस काम को आगे बढ़ाने के सिलसिले में उन सब की मुआवनत से काम आसान था, लेकिन उनके ताउन अमल शामिल नहीं होने की वजह से हमारे चेयरमैन साहब मौजूद चेयरमैन साहब ने उनकी जगह दूसरे अफराद का तकर्रुर किया ताकि ये काम बहुसन खूबी अंजाम पा सके। ज़ाहिर है अफराद तो 6 चेयरमैन साहब के साथ 6 अफराद हैं। ज़ाहिर है अगर अफराद नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह तब्दीली हो गई हो तो उनको मंजूरी देना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब रहा ये जो काउंसलिंग सेंटर कायम हुआ था, ये हुकूमत की ईमाही पर कायम हुआ, हुकूमत के ज़िम्मेदारों ने कायम किया, लेकिन क़ियाम की तारीख़ से आज तक कोई हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हमने बारहा नुमाइंदगी की चेयरमैन साहब से भी, बारहा नुमाइंदगी की हमारे वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी, और जनाब मोहतरम मीर महमूद अली साहब से भी और साहब से भी हमने नुमाइंदगी की, मगर आज तक उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, सिवाय इसके कि वादे किए गए आज होगा, कल होगा, 1 महीने के बाद होगा। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस जज्बे से कर रहे हैं कि इससे मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा हो रहा है। बहुत से वो जोड़े जो आपस में लड़ाई झगड़े का शिकार हैं और उनके रिश्ते टूटने के करीब थे,
वैसे रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उनके दिल मिल गए और मोहब्बत उनके दरमियान पैदा हो गई, और काउंसलिंग के ज़िम्मेदारों ने बहुत मोहब्बत से प्यार से उन्हें समझाया मनाया, ज़ाहिर है उसका अच्छा नतीजा बरामद हुआ और इस तरह कई ख़ानदान टूटने से बच गए। तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा काम इस काउंसलिंग मरकज़ के ज़रिए से अंजाम पा रहा है, और इसकी वजह से जैसे अभी हमारे मोहतरम मनी साहब ने कहा है, अदालतों का बोझ कम हो रहा है, पुलिस थानों का और जो हल्का हो रहा है। ऐसे में इस इदारे को आगे कैसे परवान चढ़ाया जाए ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम ख्वाहिश करते हैं कि जैसे इस इदारे को कायम किया गया था वैसे ही इसकी हिफाजत के इक़दाम हुकूमत की तरफ से किए जाएँ। न सिर्फ इसकी हिफाजत के इक़दाम किए जाएँ बल्कि इसमें और कैसे खूबी पैदा की जा सकती है और इसकी हिफाजत को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन खतूत पर हम सबको मिलकर गौर करना चाहिए। फिर आखिर में इल्तिमास यही है कि बहुत देर हो चुकी है, 6 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। यहाँ जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनके आने जाने का भी कोई खर्च उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले सिर्फ जज्बे से यहाँ पहुँच रहे हैं कि चलो कम से कम हमारे यहाँ पहुँचने से मिल्लत इस्लामिया का, इंसानियत का भला और फ़ायदा हो रहा है, इसी जज्बे से सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जैसे उसने इस इदारे को कायम किया था, उस इदारे की बका, उसकी तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तरक्की के सिलसिले में कोई लाए अमल मुरतब करे और फिर फौरी अहकामात का निफाज होनी चाहिए, वरना फिर ज़ाहिर है ये काम तादेर बाकी नहीं रह सकेगा। चंद कलिमात के साथ मैं रुखसत होता हूँ और फिर एक मरतबा मुल्तमिस हूँ हुकूमत के ज़िम्मेदारों से, वक्फ़ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से कि इस काम को बहुत जल्द मुमकिन तौर पर हम उस पर अमल आरी की कोशिश करनी चाहिए और इस इदारे के जारी व सारी रहने के असबाब भी बनाना चाहिए और इस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका में अपना नुमायाँ किरदार अदा करना चाहिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।